راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق۔ آپ سبھی کی خدمت میں بہت بہت سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ موسم خوشگوار ہے اور آپ بھی ہر طرح سے تر و تازہ ہوں گے، اور میری دعا ہے، راہ زندگی کی پوری ٹیم کی دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کی زندگی میں اسی طور پر تازگی اور خوشیاں برقرار رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، بات یہ ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بہت سے کام کرتے ہیں اور وہی کام بتدریج ہماری عادات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک شخص جن کو میں اکثر بہت صبح سویرے دیکھتا ہوں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور پھر وہ اپنے کام کاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ سیر کرتے ہیں۔ تو میں اکثر جب مجھے کبھی کوئی اور شہر میں جانا ہوتا ہے تو مجھے بھی ٹائم سے اٹھنا پڑتا ہے مجبوراً، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ عادت کیسے اپنائی؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلسل میں نے کوشش کی، اور یہ مسلسل کوشش یعنی بار بار اس کام کو کرنے کی وجہ سے یہ کام میری عادت کا حصہ بن گیا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہاں، واقعی جو کام ہم کرتے ہیں اور ان کو دہراتے رہتے ہیں، وہ کام بتدریج ہماری عادات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ کام اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کام برے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے نشے میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر ان سے ہم پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں، ہم نے تھوڑا سا اس کو سٹارٹ کیا تھا اور آہستہ آہستہ اب یہ ہماری عادت یا لت بن چکا ہے، اور اب ہمارے لیے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں اور ایسے کام کریں جو ہماری اچھی عادات کا حصہ بنے۔ تو آئیے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسی بات کے ساتھ، اور سنتے ہیں ابھی یہاں پر تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کا چرچا کرو، اس کے مقدس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے دل شادمان ہوں، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں بہت ہی بابرکت بات کہ خداوند کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس کے تمام حکموں کو یاد رکھنا چاہیے۔ جی ہاں، جب ہم ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں تو شکر گزاری بھی ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہے، اور اچھے کام کرنا بھی بتدریج ہماری اچھی عادتوں کا حصہ بن جاتا ہے، اور یوں ہم خدا کے حضور بھی مقبول ٹھہرتے ہیں اور اپنے معاشرے کے لیے بھی ہم بہتری کا، بھلائی کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے ہم رب تعالیٰ کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں جو بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، اور ہمیشہ اپنی رحمت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ آئیے ہم اس کی ثنا خوانی کریں۔
तेरा नाम के तू मुबारक है मुदा मेहरबान 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 निहायत रहीम खुदा मेहरबान 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 सब तेरी बादशाही दी मेहरबान 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 बुजुर्गी दस्त रहंद भी मेहरबान 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 ओ कर दे रहंदे हर बयान तां सारे लोकी लैन पछान के तेरी कुदरत पे पाया मेहरबान मेहरबान मेहरबान। सुना हमने हमदिया गीत, यकीनन बहुत बरकत मिली। वाकई खुदा की जात निहायत रहीम है, बहुत मेहरबान है। जितने उसके काम हम देखते हैं हमारी अक्ल दंग रह जाती है। हम आपके भी बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप भी हम पर बड़े मेहरबान हैं, हमसे राबिता करते हैं, प्रोग्राम को सुनते हैं और उस पर कमेंट्स करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो जनाब इस सिलसिले को आपने जारी रखना है, बड़ा आसान तरीका है। आप खत लिखें, प्रोग्राम राहे जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। फोन कॉल, SMS या व्हाट्सएप के लिए एक ही नंबर है 0316777655 यानी 031674775655 और हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद और हमारा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को आप ना सिर्फ सुने बल्कि इन पर कमेंट्स भी करें और इनको लाइक भी जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो यहाँ पर जनाब मैं आपके खतूत को शामिल किया चाहता हूँ और अभी आपके खतूत मेरे पास हैं, तो आइए फिर शामिल करते हैं। मलिक मोमिन रजा खोखर, बहुत शुक्रिया जनाब, आपका ताल्लुक है सियालकोट से और आपने कहा कि मैं राहे जिंदगी की सारी टीम को सलाम खुलूस और मोहब्बत। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेर सारी मोहब्बत, प्यार, दुआएं। खुश रहिए। कहते हैं कि प्रोग्राम राहे जिंदगी मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। तिलावते कलाम मुकद्दस, दोस्तों के खतूत, जवाबात और इस तरह कहते हैं कि सभी सिलसिले जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और कहते हैं कि मैं बाकायदगी के साथ प्रोग्राम को ज़ौक और शौक से सुनता हूं। तो हम जनाब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी इस मोहब्बत के लिए। तो जनाब शुक्रगुजार हैं जनाब आपका कि आपने सियालकोट से ये खत लिखा। मलिक अल्लाह बचाया खोखर, आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया और सारी टीम को आपने सलाम कहा। सारी टीम की जानिब से आपको भी बहुत बहुत सलाम। कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हम खैरियत से हैं और आपकी खैरियत के लिए हम दुआगो हैं। कहते हैं कि सभी सिलसिले बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंदीदा हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, दोस्तों के खतूत आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब आपके खतूत हमारी जान है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप इतनी मोहब्बत के साथ हमें खत लिखते हैं। बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर कमेंट किया है भाई मुबशर ने और आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया है। बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को सुना मुबशर भाई। इसी तौर पर वकास भाई, आपने प्रोग्राम को सुना और आप बाकायदगी के साथ सुनते हैं और पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपकी इस पसंदीदगी के लिए। सादिया के लिए बहुत शुक्रिया, आप भी प्रोग्राम को सुनती हैं। और इसी तौर पर इरशादुल असर जाफरी, आपने कहा कि प्रोग्राम राहे जिंदगी
8 फरवरी का खसूसी प्रोग्राम इन्होंने सुना और कहते हैं कि आदिल मुश्ताक की आवाज में प्रोग्राम सुना और हालात के मुताबिक इलेक्शन पर बात हुई जिसने दिल मोह लिए। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए। और नुसरत शमा सियाल है जी हमारे साथ, आपका ताल्लुक है सियाला से और आपने शगुफे के उन्वान से लतीफा भेजा है, मैं आपको भी सुनाता हूँ। बीवी कहती है चलो उठो चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी अबे कहाँ जा रहे हो? शौहर वकील के पास तुमसे छुटकारा पाने के लिए। अब थोड़ी देर बाद शौहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा अब क्या हुआ? शौहर कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे। जी तो जनाब ऐसा भी हो जाता है और वैसे तो ये तो एक मजाक की हद तक है, लेकिन दोनों ही जनाब अगर मिलकर चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें कोई शर्म वाली हद तक वाली बात नहीं है, बल्कि जहां पर कोई भी एक दूसरे को कमजोर महसूस करता है वहां पर उसका जोर बनकर उसकी मदद कर देनी चाहिए। तो खतूत और एसएमएस के सिलसिले को यहीं पर समेटूंगा, लिए चलूंगा आपको आगे। जी हाँ, सराइकी ड्रामे की तरफ आइए मिलकर सुनते हैं। रफीका हाँ ओए को समझा गए नहीं तो बल मैं हाँ गाल कर न ता मैं न मारे अपनी पा न पढ़ी ते फांसी चढ़ खड़ी और ते को कावड़ करन तो इलावा कोई काम आंदा है बिया घिन मार तू थापड़े यार न कावड़ा काट ते मैं पेके में दी पई। ओए होए भरजाई मेरी गाल सुनो, मैं वादा करे ना मैं को मंजन वेचण दा काम करवा के अमीर कर छोड़े सही मान नाल मनो। ओ तू निकल वेंदी थी हुण मैं सकून नाल काम भी करे था। ओए होए रमजान हाँ बस मैं वेदी तू निकल मेरी जान ओए रमजू छोड़ मेरी जान। ओए भरजाई खरिए हाँ हुण तो मेरे को रजिया थे बगैर कोई शय चंगी नहीं लगती। दस कई शय चंगी नहीं लगदी। पता नहीं मेरा निक्कू किवें हो सी हाय शोदा रजो दी पता नहीं क्या हालत हो सी भर जाई। ओए यार पहले अपनी हालत ठीक कर, पीछे रजिया भरजाई दी हालत भी ठीक थी वैसी। हाँ अच्छा हुण तो मेरे को नुस्खा दस मंजण दा ते मैं अपना कारोबार वाल शुरू कर बस। देख मियां ये सब होंदा इवें कूड़ डाटे। अच्छा सुन जरा गौर नाल। जी जी दंद चमकावण किते कास्टक सोडा। हाय हाय तो भंदी जा है तो भंदी मैं कपड़े धोवन की ते मंगवेनिया ए मोया मंजन बना के विचे छुरेंदे। नंबर 2 ब्लीचिंग पाउडर जेड़ा हर किस्म दे दाग धब्बे दूर कर दे। हाय हाय मैं तो बाल्टी च एक पूरी सट के दू जोरे कपड़े दे धो गिंदियां। जे लाला थोड़ा जिया तेजाब ही सट दी बीजे तब मजा ना आवे सी। तेरी खैर होवे क्या बात है यार, डाढ़ी सोची। वाह भाई वाह। ओए तेजाब नाल तो लैट्रीन दी बहुत गंदगी मुक वेंदी है और मुंह क्या शय है। क्या बात है। रमदू यार एक अपना काम तो कर, इतना जरा मजमा तो ला के दिखा, जरा देखू तो सही तू किवें विचे समझना। खरो खरो लाला। हां अच्छा भाई वाह। हां हां मजमा हाँ वाह कितना गलती होगा तो वाह मेरे को दस दे। हाजिर। ठीक है ना जी। भाईजान कदरदान बुलंद मकाम अजीज जान खुदा ताला इंसान को दंदा दी शक्ल सच्चे मोती दिते जे ए लश्कारा मारन ता हीरे लगदन, जे मैले होवन ता इना को कीड़े लगदन। वाह भाई वाह। मैं खानदानी हकीम हां। ए नुस्खा सागो अरस्तु को नु मिलिया है जी है। जेड़े वेले अफलातून शागिर्दी एच बाण लगा ता अरस्तु ने आख्या अफलातून ते आवे मुंह इचू खून। वाह एगन ए हेक चूंडी मुंह एच पा खून बंद चमकन दंद साफ थीवे गंद। वाह भाई वाह। ना रावे मुंह को बेड़े दी मार अते ना ही कई कीड़े दी मार। दंदा तू घेन के संग तोणी हर दर्द दा खात्मा। एक मिनट भाईजान एक मिनट कदरदान बुलंद मकाम मेरे भाईजान एक मिनट आंदा पिया। अच्छा भाईजान एक गिनो कदरदान सिर्फ 5 रुपए दी पुड़ी, सिर्फ 5 रुपए दी कीमत है। जे सिगरेट भर के पियो ता अंदर साफ
दिलां च कदूरत होवे तां दिल को टीका लाओ। गुड। जेड़े लोग ढिड्डू पलीत हन सम्मण वेले मूंदी मंजी ते मूंदे सम के एक फकी मारन, बस ढिड्डू साफ। इग्नो मेहरबान मेरे कदरदान भाई जान, इग्नो। वाह भाई वाह, क्या बात बेटा है। वीर तक कारोबार चमके सी। अच्छा भरजाई बात दुआ कराए मैं हुण वेला पिया। डूमे रमजू खां डूमे जी, जी। जरा ए गाल याद रखे, एक बारी जिथा मजमा लावे हाँ। दोबारा न वने। हाँ ये उस्ताद दी माती भी। रात 9 बजते बहन, अल्लाह खैर करे, हाले तो नहीं रमजान नहीं आया। निक्कू दा अब्बा आ गए वे, ॾाढी देर चलाई वे। निक्कू हुणे अब्बा अब्बा करेंदा सम गए, इतने डी ला दितन ते मैं ते कोई याद कोई नहीं आई। मैं तो सोचा ही तेरे नाल क्या ना बुले सा, तू एडा पत्थर दिल ते है जो खबर ही नहीं भी चगी दी। निक्कू दा प्यू तू हाल ही नाराज है मेरे नाल? वल नाराज ने तो कोई गाल कर, मेरे को लगदा तू थक्या होया। अच्छा ई कर, सीधा थी के ते खट ते संपो, मैं ते घुटे नहीं आ। निक्कू दा अब्बा कोई गाल ता कर। क्या गाल को करा मेरा मुंह। हाँ नीचा। ओ हाँ ये तो चूहे दी खोट डाकू है, तेरे दंद कित्था गए न? ना पहुंचे रोज़ ना पहुंचे। हैं? हाँ मैं जेली मंजन विच ना हम हैं? जेने विच तेजाब ज्यादा पै गए और लोगों दे मसूरे फुलन पै गए। अच्छा। हाँ मैं एक जाते बेच के दोबारा उठ कदा ही न वेंदा हम। अच्छा। ओए आज सख्ती पची हम जो नसीर पर दोबारा चला गया। वाल क्या है वो लोग मेरे मुंह विच दू वड्डियां पुनियां सट के हैं ते बुथारी मेरी बद छोड़ी दी। ओए होए क्या बल 4 घंटे बाद शाम 6 बजे वो मेरी बतरी भोर के मुंह विच आ गई। डब्बी विच चाती वदा डब्बी विच। हाँ मैं तो समझे शायद मेरे किते सोने दे कंगन बनवाते अच्छा है। मोया मैं आधी हम फराडी यारा दी यारी छोड़े हुण नतीजा चाहते। जी जनाब, पता तो बाद में लगता है जब हम पहले सोच समझकर कोई फैसला नहीं करते, और जब हम खास तौर पर नीम हकीम लोगों के पास जाते हैं या अपने टोटके आजमाते हैं तो वक्ती तौर पे तो हम बड़ा यकीन कर लेते हैं और यकीन दिलवाया भी जाता है। जी हाँ, कभी बस में बैठ जाएं तो ऐसे बड़े दावे सुनने को मिलते हैं कि 1 मिनट में, चंद लम्हों में आपके दांत साफ हो जाएंगे, आपके आंखों का पानी अगर निकलता है, कोई मसला है किसी भी तरह का, तो जनाब फौरन हल हो जाएगा। हाँ, वक्ती तौर पर तो हल हो जाता है, लेकिन वो इस मसले को मजीद पेचीदा कर देता है। तो इसलिए जनाब कभी भी ऐसे वैद या हकीम के पास ना जाएं। जिंदगी बहुत कीमती है, सेहत बहुत कीमती है। तो चलिए जनाब, अभी वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर मौसीकी का, तो बहुत पसंद आया, यकीनन आपको भी पसंद आया होगा। आज हम बात कर रहे थे कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी आदत का हिस्सा बनता चला जाता है, और बाज़ औक़ात अच्छी आदत जो है वो दूसरों को मुतासर करती हैं, और जहाँ पर हम बैठते हैं, जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनका भी बहुत हद तक हम पर असर होता है। जी हाँ, इंसान चीज ही ऐसी है कि ये बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर जज़ब करता है। तो आप बीती हमारा एक ऐसा सिलसिला है जिसमें हम दूसरों के तजुर्बात को सुनकर अपने लिए अच्छी चीजों को अपने अंदर जज़ब करते हैं। आइए मिलकर सुनते हैं कि आज आप बीती में कौन सी बात की जा रही है। जी, मुझे अकरम सियाल कहते हैं और मेरा ताल्लुक ननकाना साहब से है। तो मैं आप दोस्तों को अपनी एक आप बीती पेश करना चाहूंगा।
तो स्कूल का दौर था। आज से तकरीबन कुछ 40 साल पहले की बात मैं आपको पेश करने लगा हूँ। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में साइकिल का तो तस्वर था, लेकिन मोटरसाइकिल आम नहीं थी। जिसके पास थी वो काफी खुशहाल कराना समझा जाता था। तो हमारे पास वाहिद जरिया स्कूल जाने के लिए रेलगाड़ी ही होती थी, जो कि हमारे गांव से 1 किलोमीटर के फासले की दूरी पे थी। रेलवे स्टेशन जाना भी एक अलग दास्तान रखता है। रेल पे सवार तो बहरहाल हो जाते, तो जब पहुंचते तो वापसी का फिक्र लाहक हो जाता कि वापस कैसे हुआ जाएगा। वो भी 3 बजे छुट्टी होती थी, तो उस वक्त भी रेल का टाइम हो जाता था। उसमें भी दौड़ भाग के हमने सवार होना। तो उस्ताद मोहतरम से इजाजत लेनी, तो रेल जब सामने होनी तो दौड़े लग जानी। जब हमने रेलवे स्टेशन पे पहुंचना तो गाड़ी बाद औकात चल पड़ती, बाद औकात खड़ी होती, तो उस पे बहरहाल सवार होते। तो घर वापसी यूं तकरीबन 4 बजे घर पहुंच जाते थे। घर आके अपने वालिदैन का हाथ बटाना, जो भी घर के गांव के काम होते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां चुनना या कोई चारा वगैरह जानवरों के लिए लाना। जब सुबह निकलते तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ हम हाथ बटा के वालदा के साथ खाना उसने तैयार करना है, तो उनके हाथ बटाने का काम जो है ना हमारे जिम्मे बाकायदगी से था। इसी तरह गैस वगैरह की तो उस वक्त में सहूलत नहीं थी, ना ही इतनी बिजली आम हुई थी। कोई हीटर बंदा चला लेता है, सर्दी हो या गर्मी हो, हमारे एक जैसे ही दिन थे। तो अब मैंने देखा है कि हमारे बच्चे जो हैं या इर्द गिर्द गाँव के जो भी देखे हैं, स्कूल लाइफ से निकले तो जाहिर है कि बड़े इदारे में चले गए, कॉलेज की तरफ चले गए, और साथीज़ा की जो करम नवाजी होती थी उनका एहतराम किया जाता था। तो जाहिर है कि वो खुदा की एक देन होती कि हमारे जहन में भी उनकी बातें बैठती थीं। उस वक्त कोई इतना ज़्यादा स्कूल का खर्चा नहीं है, वालिदैन को अफोर्ड करना पड़ता था। 4 आने 8 आने हमें खर्चा मिलता था, तो हम काफ़ी खुश होते थे और पार्टी भी उड़ा लेते थे मरूंडे की। और अभी तक पुराने साथी जो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार सियाल है, वो मरूंडे की पार्टी बड़ी याद आती है। बहरहाल वो दौर अपनी जगह पे बहुत खुशहाल रहा है। बहरहाल कॉलेज के बाद जल्दी शादी हो गई। शादी के बाद जो सिलसिला चला तो जाहिर है कि बच्चे हुए, बच्चों को तालीमी इदारों में भेजना शुरू कर दिया। वो भी अब माशाल्लाह कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। जो हमने मुश्किलात देखी हैं वो मेरा ख्याल है कि इस दौर में तो तसव्वुर भी ये बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो इन बच्चों को सब सहूलतें मुयस्सर हैं। हम अगर रेल पे दौड़ भाग के सफ़र करते थे, स्कूल जाते थे, तो अब हमने उन्हें मोटरसाइकिल भी लेके दी हुई है। जो भी उनके प्राइवेट इदारों के खर्चे हैं, ज़ाहिर है कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं तो उन्हें हम प्राइवेट तालीमी इदारों में दाखिल करवा चुके हैं। यानी कि जो हमारी बसात में है वो हम उन्हें ख़रीद के देते हैं। इस दौर का सबसे बड़ा जो सहूलत है वो मोबाइल है, वो भी हमने उन्हें लेके दिया है। कोरोना के दौर में ये मसला चल निकला था कि ऑनलाइन क्लासें होती हैं, वो भी हमने लेके दिया। वो ऐसा उसका भूत बच्चों पे सवार हुआ है कि वो अब तक वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मोबाइल ने बच्चों को अगर बहुत कुछ दिया है तो मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ नुकसान भी पहुँचाया है। रात गए तक उनका मोबाइल के साथ चिमटे रहना, सुबह देर से उठना, कोई इबादत ना कर सकना, दीन से दूरी। मैं समझता हूँ कि हमारे दौर में अगर सहूलियात कलील थी तो तरबियत बहुत अच्छी थी। तो इस दौर में जितनी सहूलियात बच्चों को मिल रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसके इवज़ वो मुआशरे को कुछ सहूलतें या आसानियाँ पैदा नहीं कर पा रहे। काश के बच्चे अपने वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, तालीमी इदारे में अपने असातिज़ा का एहतराम दिल से करें, तो वो मुआशरे के लिए भी अच्छा शहरी बन सकेंगे और मैं समझता हूँ कि अपने वालिदैन के लिए भी बहुत ही सुकून का बायस बन सकेंगे। जी हाँ, ये तो हुक्म इलाही है कि हम अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। और फिर इसके अजर के बारे में बड़ा वाज़े लिखा है, अगर हम अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, तो फिर ना सिर्फ इस जमीन पर हमारी उम्र दराज होगी बल्कि हम बरकत से भी माला माल होंगे। तो खुदा करे कि हम अपने वालिदैन की इज्जत करें और ये भी हमारी आदत का हिस्सा बन जाए। अपने बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का कहना माने और हमेशा अच्छे कामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते चले जाएं। आइए इस मकसद को खुदावंद ताला के हुजूर भी रखते हैं, लेकिन उससे पहले आखिर में यही कहूंगा कि हाँ, वो काम जरूर अपनी आदत का हिस्सा बनाएं
जो आपके अपने लिए भी और दूसरे इंसानों के लिए भी फायदा मंद हो। आइए मिलकर खुदा के हुजूर दुआ करते हैं। रब ताला, हम आपके हुजूर मौजूद हैं। हम दुआ गो हैं तमाम सामईन के लिए, उनके खानदानों के लिए और उनकी खैर व बरकत के लिए। खुदावंद ताला, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी सलामती की, बरकत की और इस्तेहकाम की दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं कि हुकूमत और तमाम इदारे आपके डर और आपके खौफ में तमाम फैसले करें। और आखिर में तमाम सामीन के खानदानों में अगर कोई बीमार है या परेशान है तो उसकी बीमारी और परेशानी को दूर कर दीजिए। ये दुआ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ अपने मेजबान आदिल मुश्ताक को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।